Hello students, today we will start chapter number 6 simultaneous linear equations of unit number 3 algebra. We will study what is simultaneous linear equations and different methods of solving simultaneous linear equations, and will solve exercise 6a from Selena Concise Mathematics. Let's start. First of all, we are studying terminology regarding this chapter. We will start from linear equations. What is a linear equation? Any equation in which degree of variable or variables is 1. अगर एक वेरिएबल है तो उसकी डिग्री भी 1 होगी. अगर मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं, 2 और 3 वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में, तो डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल विल बी 1. सपोज वी आर कंसिडरिंग 2 एग्जाम्पल. फर्स्ट इज x plus 5 is equal to 0 and second is x square minus 4 is equal to 0. In this equation there is only one variable x and the degree of this variable is 1. In this equation variable is 1 x, but degree of this variable is 2. So this is a linear equation. This is not linear equation. Next, 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. In this equation there are two variables x and y. Degree of x is 1, power of x is highest power of x is 1 and degree of y is 1, means degree of each variable is 1. So it is also a linear equation. This is a linear equation in one variable and this is a linear equation in two variables. 2 से more variables में भी आप linear equation लिख सकते हैं. Condition is only 1. Degree of each variable should be 1. Means general form of a linear equation in one variable is ax plus b is equal to 0, where a is not equal to 0 and a and b are real numbers and x is a variable. And general linear equation in two variables will be in the form ax plus by plus c is equal to 0, having condition a and b is not equal to 0, a, b, c are real numbers and x and y are variables. Degree of variable is 1 in this equation. Degree of each variable in this equation is 1. So both are linear equations. Next, solution of a linear equation. Suppose we are considering a linear equation in two variable, that is 3x plus 5y plus 2 is equal to 0. Then what will be the solution of this linear equation? Solution of this linear equation will be the values of x and y which will satisfy this equation. जो इस equation को satisfy करेंगी, means x और y की वो values जिन्हें हम left hand side में put करेंगे तो हमें right hand side के equal value मिलेगी. Suppose in this equation we put x is equal to 1 and y is equal to minus 1 in left hand side. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर minus 1. Value is 0. Look at this, the right hand side is 0. It means x is equal to 1 and y is equal to minus 1 is the solution of this linear equation. Solution of a linear equation in two variables will be found in the form of ordered pair. Ordered pair की फॉर्म में आपको मिलेगा फर्स्ट वैल्यू y फर्स्ट वेरिएबल की होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल की होगी. एंड always remember, every linear equation in two variables has an unlimited number of solution. इस लाइन को भी मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी. Every linear equation in two variables has unlimited number of solution. आप देखिए जो
लीनियर इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे थे 3x + 5y + 2 = 0, इसके लिए एक सोल्यूशन हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है 1 - 1। अब इसके देखिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे पॉसिबल है। आप सब ने क्लास 8th में, क्लास 7th में लाइन ग्राफ ड्रॉ किया होगा। इट इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ लाइन। आप इसमें टेबल बनाया करते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, y की फाइंड आउट करते थे। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू तो हमने ये फाइंड आउट किया, इफ x is 1 then y is -1। सपोज x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो इक्वेशन में पुट करिए। अब हमने ये एज्यूम कर लिया है कि x = 2 इसका सोल्यूशन है, हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया है, y = -8/5। So second solution for this equation will be 2 and -8/5। और इस तरीके से आप जितने सॉल्यूशन चाहें उतने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, all points will be the solution of this equation. So every linear equation in 2 variables has an unlimited number of solutions. Now come to the next terminology related to this topic, that is simultaneous linear equations. किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो इजी होता है, बट उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये ज़रूरी है अगर आपको उस टॉपिक की डीप नॉलेज चाहिए, आपको आगे आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, तो जब आप MCQs को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए फंडामेंटल नॉलेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। तो किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो थ्योरी होती है उसको आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझा करिए और उसके मेन पॉइंट्स को ध्यान रखा करिए। चलिए अब देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस नाम से ही क्लियर है, एक साथ एक ही टाइम पर। अगर हम कोई 2 लीनियर इक्वेशंस कंसीडर कर रहे हैं एक ही टाइम पर, मींस एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, देन these equations are known as simultaneous linear equations. अब इन simultaneous linear equations का solution अगर हमें find out करना है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन सपोज इसका ग्राफ ये है, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ ये है, दिस विल बी द solution of these 2 simultaneous linear equations जो दोनों को satisfy करे। Means solution of 2 simultaneous linear equation will be the common values of x and y which will satisfy both the equations. आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में x और y की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो आपको राइट हैंड साइड मिले, आप सेकेंड इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट करें तो भी आपको राइट हैंड साइड मिले। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे रिलेटेड। Suppose we are considering 2 equation. First is 2x minus y is equal to 1 and second is 3x plus y is equal to 14. Both are linear equations because degree of each variable is 1 and we have to find solution of these 2 linear equations simultaneously. If we substitute in place of x 3 and in place of y 5, then from equation 1 what will be the value of left hand side, that is 2x minus y। करिए सब्सटीट्यूट, x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 5। the value is 1 means equal to right hand side, so this is the solution of first linear equation 3, 5। now second equation को देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 3x प्लस वाई। x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम 3 और y के प्लेस पर 5, दैट इज 14 and this is the right hand side of equation number 2. It means x is equal to 3 and y is equal to 5 is the solution of both the equations. So this will be the solution of this system of linear equation, simultaneous linear equations.
Our next topic is how to solve these simultaneous linear equations. कैसे सॉल्व करेंगे हम अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन है simultaneous linear equations, then इस पूरे चैप्टर में आपको इसी टाइप की टू लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y which will satisfy both the equations. There are three methods to solve simultaneous linear equations. Number one is substitution method. Second is elimination method. And third is cross multiplication method. एग्जामिनेशंस में आपको कई बार क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग मिलेगी सॉल्व दीज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. मीन्स कोई मेथड उसमें मेंशन नहीं होगा, तो आपकी चॉइस है आप उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन से करिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए. लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको मेंशन होता है कि सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना होगा. सो आपको तीनों मेथड्स को ही सीखना होगा. Sixth A exercise is based on substitution method, B is based on elimination and C is based on cross multiplication method. और आगे की एक्सरसाइज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. Today we will solve sixth A exercise which is based on substitution method. So we are coming to substitution method. नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल. चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. सपोज वी हैव टू सॉल्व दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट इज x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए किसी भी इक्वेशन में से आप दोनों इक्वेशंस में से किसी एक को ले लीजिए और एक वेरिएबल की वैल्यू x की या फिर y की सेकेंड वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड आउट कीजिए. सपोज हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं. इक्वेशन 1 से हम y के इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 माइनस x. अब y की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2. अगर आप वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए. अगर सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिए. अब देखिए सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11. इसमें हम y के प्लेस पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट की है इन टर्म्स ऑफ x वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. मीन्स 7 माइनस एक्स, तो y के प्लेस पर हमने 7 माइनस एक्स पुट कर दिया. बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज. नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल x, तो इसको हम इजीली सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ x इज 5. अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया था. y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स यहाँ पर आप पुट कर दीजिए. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल. x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस. ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप किसी भी इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A. Solve the following pairs of linear simultaneous equations using method of elimination by substitution. Substitution method जो अब हमने स्टडी किया है उसका सेकेंड नेम है elimination by substitution. बिकॉज आप देखिए हमने सेकेंड इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दिया था y को by substituting the value of y in terms of x. So it is known as substitution method or एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें गिवन है इसमें और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. किसी भी एक इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ से हम
x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. 8x विल बी 9 माइनस 5y, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 और इसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. तो x के प्लेस पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 9 माइनस 5y अपॉन 8, मीन्स हमने x को एलिमिनेट कर दिया. सॉल्व करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को. जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में 8 से 8 कैंसल्ड आउट हो गया. इसमें मल्टीप्लाई किया 16 और इसमें मल्टीप्लाई किया 32. y के टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रखिए. 16y माइनस 15y इज y और कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर लीजिए. वैल्यू ऑफ y इज 5. देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है. अब x की फाइंड आउट करेंगे. इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे जहां पर हमने फाइंड आउट की थी x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8. This is minus 2. So the solution is x is equal to minus 2 and y is equal to 5. This will be the common point of both the equations. Question number 2. Two equations हमें given है and we have to solve these equations simultaneously by substitution method. तो किसी एक equation में से हम वेरिएबल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में. इस बार हम सेकेंड वाली इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं और इस इक्वेशन से आप देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है. y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x. ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 बिकॉज इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है. सो वी विल पुट इन इक्वेशन 1. अगर हम इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट करते देन वी विल पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 इज 2x माइनस 3y. y के प्लेस पर हमने सब्सटीट्यूट किया है 9 माइनस 5x. नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Value of x is 2. Now substitute this value in this. Y is equal to 9 minus 5x and find the value of y. So y is equal to 9 minus 5x means 9 minus 5 और x के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 2. Value of y is minus 1 means x is equal to 2 and y is equal to minus 1 is the solution of given simultaneous linear equations. Question number 3. Two linear equations are given and we have to solve these equations. We are considering equation number 2. 2x is equal to 2 plus 3y. It means x is equal to 2 plus 3y upon 2. Now substitute this value of x in equation 1. 2x और x के प्लेस पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. y is equal to 1. Now x is equal to 2 plus 3y upon 2. 3y और y के प्लेस पर 1. x is equal to 5 by 2 means x is equal to 5 by 2 and y is equal to 1 is the solution. क्वेश्चन नंबर 4. टू इक्वेशंस आर गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से. इट विल बिकम
मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से इसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए और इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 2x plus 1y means y is equal to 250. Now it is our equation number 3. 2x minus 4 minus 1.6y is equal to 116. 2x minus 1.6y is equal to 120. Solve equation 3 and this equation. From equation 3, y is equal to 250 minus 2x. आप कोशिश करिएगा वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना मिले, सिंपल फॉर्म मिले, अपॉन में वैल्यू ना मिले। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए हमें y की एक सिंपल वैल्यू फाइंड आउट हो रही है 250 माइनस 2x। तो हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 4, 2x माइनस 1.6 और y की वैल्यू हमने पुट की है 250 माइनस 2x इज इक्वल टू 120। x is equal to 520 divided by 5.2 means x is equal to 100. Now y is equal to, that is 250 minus 2x means y is equal to 50. X is equal to 100 and y is equal to 50 is the solution set. इस क्वेश्चन में आप देखिए एक और इजी सा सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते थे। वी आर कंसिडरिंग दीज टू इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, 2x माइनस 1.6 इज इक्वल टू 120। तो हम इक्वेशन नंबर 3 से डायरेक्ट 2x की वैल्यू 250 माइनस वाई भी पुट कर सकते थे इन इक्वेशन 4। आप डायरेक्ट 2x की प्लेस पर पुट कर दीजिए 250 माइनस वाई और माइनस 1.6y एज इट इज, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू 50। नाउ y की वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए। 2x इज इक्वल टू 250 माइनस y मीन्स x इज इक्वल टू 200 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 100। आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है और फर्स्ट वाले में भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप कैच कर पा रहे हैं तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी 7y है और इक्वेशन 2 में भी 7y है। तो इक्वेशन 1 से डायरेक्टली 7y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इक्वेशन 2 में, और अगर नहीं कर पा रहे हैं ये पॉइंट कैच तो आप डायरेक्ट सिंपली इक्वेशन 2 में से आप देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 7y माइनस 8, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, आंसर विल बी सेम। देखिए मैं दोनों मेथड से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड हमने यहाँ से 7y की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज 6x माइनस 7, एंड नाउ वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 7y इन इक्वेशन 2 बिकॉज इक्वेशन 1 से हमने सब्सटीट्यूशन लिया है तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 7y के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं 6x माइनस 7 और माइनस x एज इट इज इक्वल टू 8। 6x माइनस x इज 5x, x is equal to 3. Then 7y is equal to 6x minus 7, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। y is equal to 11 by 7। अब देखिए सेकेंड मेथड, सपोज ये 7y वाला पॉइंट हम नहीं कैच कर पाए हैं, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशंस हमें गिवन थी। फर्स्ट इक्वेशन 6x इज इक्वल टू 7y प्लस 7,
एंड सेकेंड इक्वेशन 7y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं जिसमें अपॉन ना आए, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बिना अपॉन के आपको, बिना फ्रैक्शन के आपको वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेशन सिंपल होगी। तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। x को x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7y माइनस 8 और इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। 6x और x के प्लेस पर 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 7y प्लस 7। y इज इक्वल टू 55 बाई 35, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 11/7। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x इज इक्वल टू 7y माइनस 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन सेट आपको सेम मिलेगा, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन 1 में सिंपली हमें y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 गिवन है, तो जस्ट यही y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। सिक्सटीन एक्स माइनस 5y और y के प्लेस पर वी आर सब्सटीट्यूटिंग 4x माइनस 7। x is equal to 5/2. Therefore, y is equal to 4x minus 7. Means y is equal to 3. X is equal to 5/2 and y is equal to 3 is the solution set. Question number 7. इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन सिमिलर ही हैं, आप किसी एक में से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज x को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 39 माइनस 7y अपॉन 2। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। थ्री एक्स और x के प्लेस पर हमने पुट किया है 39 माइनस 7y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 31। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। y is equal to 5, then x is equal to 39 माइनस 7y और y के प्लेस पर हमने सब्सटीट्यूट किया है 5 अपॉन 2। x is equal to 2, then x is equal to 2 and y is equal to 5 is the solution set. Question number 8, two equations हमें given है and we have to solve these equations simultaneously. Both equations have decimal. So first of all we will simplify these equations by removing decimal. For this we are multiplying equation 1 by 10. अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को तो हमें मिलेगा 15x, सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 1y इज इक्वल टू 62. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन 3 and for our question it is first equation. Then we are multiplying equation 2 by 10. It will become 30x minus 4y is equal to 112. अब आप देखिए अगर आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है तो दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2. इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हो जाए तो आप डिवाइड कर दीजिए बिकॉज इससे आपको आगे बहुत सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कैसे देखिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. 2 से डिवाइड किया हमने, ये बन जाएगा 15x माइनस 2y 56. इट इज़ अवर इक्वेशन 4.
अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमें सॉल्व करना है और दोनों में 15x x वाला टर्म कॉमन है, तो अब हम किसी एक इक्वेशन में से 15x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। और अगर यहाँ पर ये डिविजिबल बाय 2 का पॉइंट आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए 62 माइनस 15x, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस स्टेप को आपने फॉलो कर लिया है तो इट इज द कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 15x इज इक्वल टू 62 माइनस y, और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 4। देन इक्वेशन 4 विल बिकम 15x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 62 माइनस y, and this is minus 2y is equal to 56. Y is equal to 2. Now substitute this value of y for x. 15x is equal to था 62 minus y, इसमें हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। Then 15x is equal to 62 minus 2 means 60, then x is equal to 60 divided by 15 means x is equal to 4. So x is equal to 4 and y is equal to 2 is the solution set. क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में आप देखिए इक्वेशंस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन है, हम इनको सबसे पहले ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम सबसे पहले चेंज कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 21, तो राइट साइड में प्लस 21, इट इज अवर इक्वेशन 1। नाउ वी आर कन्वर्टिंग सेकेंड इक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x माइनस 5 plus 4y minus 16 is equal to 0. It means 5x plus 4y, this is again minus 21, is equal to 21. It is equation 2. अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो देखिए कोई भी टर्म पूरी तरह से कॉमन तो नहीं है, तो x या y की वैल्यू में से किसी एक की हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज इक्वेशन 1 से हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 21 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 21 माइनस 3y अपॉन 2 एंड वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, दैट इज 5x, और x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट कर दिए हमने वैल्यू प्लस 4y इज इक्वल टू 21। अब देखिए इस अपॉन वाले 2 को रिमूव कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2। फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा दिस एंड द सेकेंड टर्म विल बी 8y इज इक्वल टू 42। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, y is equal to 9. Now x is equal to 21 minus 3y and the value of y is 9 upon 2. That is minus 3. Means x is equal to minus 3 and y is equal to 9 is the solution set. Question number 10th, इसमें भी हमें इक्वेशंस बहुत सिंपल फॉर्म में नहीं गिवन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी आर टेकिंग इक्वेशन 1 दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले रहे हैं, 7 3s are 21 और 21 एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर रही हूँ, सेकंड में हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और 21 को हमने ले लिया राइट साइड में। दिस इज ओनली 3 एंड दिस इज 35y मीन्स 6x प्लस 35y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 18 आपको मिलेगा तो राइट साइड में हो जाएगा प्लस 18 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज 6x प्लस 35y इज इक्वल टू 270। चलिए अब सेकेंड वाली जो इक्वेशन गिवन है उसको कंसीडर करते हैं। वो थी 3x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। अब इसको भी हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम होगा 18 और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी 9 से, सेकेंड वाली 2 से, और 18 एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से। आप इसको पूरा फर्स्ट इक्वेशन की तरह एलसीएम लेकर के भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। एटीन माइनस 6 12 और राइट साइड में ये माइनस साइन के साथ जाएगा। मीन सेकेंड इक्वेशन इज 27x माइनस 8y इज इक्वल टू 222। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। एग्जैक्टली कॉमन तो कोई इसमें टर्म नहीं है, वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी हमें। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 270 माइनस 35y अपॉन 6 और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इन इक्वेशन 2। x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, थ्री से कट किया है और 2 को अब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। टू से मल्टीप्लाई होगा 16y और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा 444। y वाली टर्म को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ऐड हो जाएंगी। पूरा का पूरा कैंसल आउट हो रहा है 6 टाइम्स मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 6। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 270 माइनस 35y अपॉन 6। y की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 और सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू ऑफ x इज 10 मीन्स x is equal to 10 and y is equal to 6 is our solution set। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इक्वेशन सिंपल फॉर्म में गिवन है। जस्ट इक्वेशन 2 में हम इस 10 को राइट साइड में ले जाके -10 लिख लेंगे। तो चलिए किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 1 से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। देन x इज इक्वल टू 11 minus 2y divided by 3. Now substitute this value in equation 2. डायरेक्ट 10 को आप लेफ्ट साइड में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप कह दीजिए कि हम एलसीएम ले रहे हैं लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में ले जा रहे हैं। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर इस वाले 2 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड टर्म बन जाएगी 9y एंड दिस विल बी 30 इज इक्वल टू 0। नाउ -13y प्लस, इन दोनों को आपस में सॉल्व कीजिए।
value of y is 4, then x is equal to 11 minus 2y upon 3. That is 1. X is equal to 1 and y is equal to 4. क्वेश्चन नंबर 12. अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए 2x वाला टर्म दोनों में कॉमन है, सो हम 2x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 6 और डायरेक्ट 2x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम इन इक्वेशन 2. तो 2x के प्लेस पर हमने पुट कर दिया है 3y माइनस 6 और प्लस 3y एज इट इज माइनस 18 एज इट इज. नाउ वी सॉल्व दिस फॉर y. y इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू है 3y माइनस 6 एंड y इज 4. x is equal to 3. So x is equal to 3 and y is equal to 4 is the solution. क्वेश्चन नंबर 13 में हम पहले इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम रिड्यूस करेंगे बाय टेकिंग LCM. 2 को हम राइट साइड में ले लेते हैं, दैट विल बिकम -2. अब राइट साइड में LCM आप लेफ्ट साइड में लीजिए, दैट इज 6. (9x minus 10y is equal to -12). This is equation 1. Now we are considering equation 2. That is x upon 3 plus y upon 2 is equal to, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लीजिए, 13 upon 6. और अब हम लेफ्ट साइड में LCM ले रहे हैं, दैट इज 6. टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 2. अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. इसी इक्वेशन में से चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 13 माइनस 3y अपॉन 2 और इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. (9x) और x के प्लेस पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12. 2 LCM ले लेते हैं और 9 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. थ्री टाइम्स कट हो रहा है. y इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और y के प्लेस पर हमने 3 पुट कर दिया अपॉन 2 means value of x is 2. So x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution. Question number 14th, last question of this exercise. इसमें भी हम पहले equations को simple form में convert करेंगे. So we are considering equation number 1. LCM ले लेते हैं. 30 is the LCM. Cross multiply. 5x plus 2y is equal to 120. Second equation consider कर रहे हैं. फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 57. अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है. y इज इक्वल टू हो जाएगा, y को राइट साइड में ले लीजिए, 4x माइनस 57 और इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में.
दैट इज 5x प्लस 2y और y के प्लेस पर 4x माइनस 57 इज इक्वल टू 120. x is equal to 18 means y is equal to 4x और x की प्लेस पर 18 पुट कर रहे हैं माइनस 57. y is equal to 15. So x is equal to 18 and y is equal to 15 is the solution set. और हमने कंप्लीट कर ली है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 6A. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6B की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ही इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. वी विल स्टडी द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.